Moving on from your session, it's my honor to invite on stage Mr. Ashish Chauhan ji. Mr. Chauhan is the MD and CEO of National Stock Exchange of India, a technocrat from IIT Mumbai and IIM Calcutta. He was part of the founding team of NSE. He is credited with setting up first screen-based trading in India, mobile trading, mutual fund distribution through exchanges, markets for SME shares, satellite telecom, the Nifty index, derivatives trading, and many other modern development in Indian stock markets. He is considered as the father of modern financial derivatives in India. Ashish ji has been fulfilling NSE's mandate of being a frontline regulator that extends well beyond any comparable exchanges in the world. NSE today, ladies and gentlemen, is the largest exchange in the world in terms of number of orders and trades per day. He has been instrumental in the success of NSE IFSC and in bringing SGX Nifty to GIFT IFSC, which is a pivotal moment in the Indian financial markets in line with Prime Minister Narendra Modi's vision for Amrit Kal. He has also played a significant role in the establishment of Social Stock Exchange. Prior to joining NSE back in 2022, he was the MD and CEO of the Bombay Stock Exchange for 10 years. He is a member of University Grants Commission, the Chancellor of the University of Allahabad, and is on the board of IIM Calcutta and other institutions of repute. He is a faculty of Nottingham University, UK, Toronto Metropolitan University, Canada, and he has also worked in the Reliance Group and as the CEO of Mumbai Indians IPL cricket team in his formative years. A book titled Sthit Pragya, The Process of Maintaining Equilibrium, addresses his life's journey. He has been awarded many awards in India and abroad, including the most influential CEO award by CEO Monthly in 2024, Lifetime Achievement Award from Global Custodian at Singapore in 2023, Lifetime Achievement Award in the field of information technology by CTO Magazine, Istanbul, Top 50 CIOs in the world by Information Week, US Digital Icon of the Year, Asian Banker of the Year, and many, many more. So, ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Sir, it's an honor to have you here. धन्यवाद निखिल जी. It's a pleasure and honor to be in front of all of you today at the World Hindu Economic Forum. You would have, some of you participated in the earlier edition. Many of the editions I have participated, including last year at Bangkok. जैसे नीलेश भाई ने शुरू किया कि धर्मस्य मूल अर्थ, मेरा भी यही कहना है कि हम महासत्ता तभी बन पाएंगे जब हम आर्थिक रूप से भी महासत्ता होंगे. तो आर्थिक रूप से महासत्ता कैसे बनती हैं, उसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा कि आर्थिक जगत में जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है उसमें दो चीज़ें होती है. एक को कहते हैं इंटरमीडिएशन, जो बिचौलियों का रहता है, और एक होता है डिसइंटरमीडिएशन, जहां आप एक दूसरे से आमने सामने व्यवहार करते हो. तो इंटरमीडिएशन कहां पे आता है? इंटरमीडिएशन जब आप बैंक को पैसा देते हो और फिर बैंक किसी उद्योजक को पैसा देता है और उद्योजक पैसा वापस भी ना करे तो भी बैंक आपको वापस करते हैं, उस प्रक्रिया को इंटरमीडिएशन कहते हैं अंग्रेजी में, इकोनॉमिक्स में. और आप किसी को डायरेक्टली पैसा देते हो, उसमें प्रॉफिट हुआ तो भी आपका, लॉस हुआ तो भी आपका, तो उसको डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं. तो मैं पहले जब मैंने शुरू किया मेरा कैरियर, तभी मैं इंटरमीडिएशन प्रोसेस में था, मैं बैंकर था, और मेरी बैंक को सरकार ने कहा, आईडीबीआई को, कि आप एनएससी की स्थापना करिए. तब मैं डिसइंटरमीडिएशन फील्ड में आ गया. तो जब आप कोई स्टॉक मार्केट के जरिए या अदरवाइज भी किसी के उद्योग में आप पैसा देते हो
भागीदार स्वरूप या ऋण, दोनों में आप उसको डिसइंटरमीडिएशन प्रक्रिया से जाते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी होती है उसमें ब्रॉडली यही दो प्रकार से चैनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होता है। जो सेविंग होता है वो हाउस होल्ड करता है, और जो यूज करते हैं वो सेविंग को वो उद्योजक करते हैं, व्यापारी करते हैं। जब आप डायरेक्टली निवेश करते हो तो अद्भुत घटना होती है। इकोनॉमिक्स में जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे, जितनी भी पुस्तक पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत साफ कहा गया है कि जो भी देश गरीब होता है, जहाँ ज़्यादा गरीब लोग बसते हैं, उसमें स्वाभाविक सेविंग नहीं होता है, संचय, धन संचय नहीं होता है, क्योंकि गरीब आदमी क्या सेव करेगा। और दूसरा कि कोई सेव भी कर गया, कोई संचय, धन संचय किया है, तो दूसरों पे भरोसा नहीं करता है, अपने हार्ड अर्न मनी दूसरों को नहीं देता है। तो इसलिए वो इकोनॉमीज में जो पुअर है पर कैपिटा इनकम में, तो वो इकोनॉमीज में स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि बैंक चाहिए उसके लिए। बैंक पैसा लेगा और सामने वाले को लैंड करेगा, और सामने वाला डूब भी गया तो भी बैंक आपको ठीक करके देगा, क्योंकि वो सामने इतना ज़्यादा मार्जिन लेता है। जबकि आप किसी को पैसा देते हो तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो पैसा लेके भाग गया या उसका धंधा ठीक नहीं चला तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप जब भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो आप क्या करते हो? भागीदार बनते हो। भागीदार उसके बिजनेस में बनते हो, जो मैनेजर है, ओनर है, उसके बिजनेस में बनते हो। जब प्रॉफिट मिलेगा तब जाके उसमें से आपको एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा जितना आपने शेयर खरीदा हुआ है। तो शेयर का मतलब है भागीदारी, है ना। तो ये कंसेप्ट जो है स्टॉक मार्केट का, कोई भी गरीब देश में ये स्टॉक मार्केट ठीक से नहीं चलता। लेकिन आज भारत एक अपवाद है। एक काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल है कि भारत में पर कैपिटा इनकम आज भी $3,000 पर कैपिटा इनकम है लास्ट ईयर की। हमारा जो इकोनॉमिक्स का डेटा आता है पर कैपिटा इनकम का, वो साल के बाद आता है और वो उसके भी 6 महीने के बाद आता है, तो उसको मैं लो फ्रीक्वेंसी डेटा कहता हूं। तो उसमें जो $3,000 पर कैपिटा इनकम है, ऐसी कंट्रीज में एक भी कंट्री में, एक भी देश में ऐसा मार्केट नहीं है स्टॉक मार्केट जो भारत में है। $6,000 पर कैपिटा इनकम में भी ऐसा मार्केट नहीं है। $12,000 पर कैपिटा इनकम में भी ऐसा मार्केट नहीं है। $24,000 पर कैपिटा में भी ऐसा मार्केट नहीं है। एक ही मार्केट है जो $24,000 वाली कैटेगरी में, उसको चाइना कहते हैं। चाइना में जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सरकार जाके खरीद लेती है। भारत में स्टॉक मार्केट गिरता है तो कोई नहीं खरीदने आता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भारत में आज 77 साल में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 77 ईयर्स में हमने क्या प्रगति की है। तो हमने ये प्रगति की है कि हमारे छोटे छोटे धन संचय करने वाले, 1000 रुपया, 500 रुपया धन संचय करने वाले लोग जो श्रीनगर में बैठे हुए हैं, जो लद्दाख में बैठे हुए हैं, डिब्रूगढ़ में बैठे, जोरहाट में बैठे, वो लोग आज भारत के उद्योजक के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ का या अंडमान का जो व्यक्ति है, वो अपना 1000 रुपया, अपना 500 रुपया सेलम तमिलनाडु की कंपनी में निवेश करता है, तो उसको एक ट्रस्ट बना है, उसको एक भरोसा बैठा है कि मेरा पैसा, वो व्यक्ति जिसके कभी कंपनी में मैं जाने वाला हूँ, उसके गांव में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मेरा पैसा ठीक से यूज करेगा, उसमें से प्रॉफिट बनेगा, वो तो मार नहीं लेगा, और उसमें से मुझे एक छोटा सा हिस्सा जो मेरे लायक है, मैंने जो खरीदा है, वो मुझे मिलेगा। कितना बड़ा लीप ऑफ फेथ है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि 1947 से 2024, 1947 से 2024 हमने जो प्रगति की है, हमने जो अचीव किया है, वो हमारे नागरिकों का, हमारे उद्योजक पर भरोसा। आज आपने देखा होगा पिछले 1 साल से 2 साल से एक प्रक्रिया चल रही है कि हमारे उद्योजक पे हमारा भरोसा उड़ जाए, ऐसी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज जॉब्स कौन क्रिएट कर रहा है? वही लोग क्रिएट कर रहा है। उनके पैसे से हम उन्हीं को डांटते रहते हैं, उन्हीं को मारते रहते हैं जो लाखों जॉब क्रिएट करते हैं। लेकिन आज उसकी बात नहीं करेंगे। मेरा ऐसा है कि आज भारत में 10.7 करोड़ निवेशक निवेश करते हैं डायरेक्टली। एनएससी में आज 20 करोड़ से अधिक अकाउंट्स हैं। उसमें से यूनिक पैन नंबर या
आधार नंबर में 10.7 करोड़ निवेशक है, 24% महिलाएं हैं, 8 करोड़ घर आज डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के जरिए निवेश करते हैं दूसरे उद्योजक पे। आज एक गरीब दूसरे गरीब को उसको बिजनेस करने के लिए पैसा जुटा रहा है। बहुत बड़ी बात है, ये लीप ऑफ फेथ है। भारत अपने ही उद्योजक पे आज बहुत भरोसा करने लगा है। 20% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स आर नाउ इन्वेस्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट डायरेक्टली। जर्मनी में भी 20% नहीं है, फ्रांस में नहीं है, आज भारत में है, क्योंकि वो निवेशक को जो बचत करता है उसको एक भरोसा है कि मेरा उद्योजक इतना सही है कि पैसा का अच्छे से इस्तेमाल करेगा, प्रॉफिट आएगा तो उसका हिस्सा मुझे देगा। उसको ऑफ कोर्स उसको भरोसा ये भी है कि हमारी पार्लियामेंट पे भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री पे है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे है, हमारे रेगुलेटर पे है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा हमारे उद्योजक पे है, क्योंकि पैसा तो वही कमा के देगा ना। तो यही बात है जो भारत को आज आगे ले जाएगा। क्यों ले जाएगा कि पिछले जब आप 1000 साल देखो, 500 साल देखो, उसमें आपको बहुत धन कमाने के लिए बहुत धन डालना पड़ता था। भारत पेरेनियली एक तरह से कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री था। बहुत कम लोगों के पास पैसा था, क्योंकि हम भी एक तरह से गुलाम थे, तो हमारे पास भी पैसे नहीं थे, तो दूसरों को क्या देंगे। तो कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि आप बहुत पैसा डालोगे तो बहुत पैसा आपको वापस मिल सकता है धंधा करके। जबकि हमारे बहुत कम लोगों के पास वो कैपिटल था जब आज़ाद हुए तभी, और टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि बहुत पैसा डालना पड़ता था। टेक्नोलॉजी का जो वेव्स आते गया तो धीरे धीरे करके आज ऐसी टेक्नोलॉजीज बनी हुई है कि आप कम पैसा डालो लेकिन ज़्यादा बन सकता है। उसको मैं कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल कहता हूँ। पहले आपको 1000 करोड़ बनाने के लिए 1000 करोड़ डालना पड़ता था। आज नंदन नीलेकनी ने, नारायण मूर्ति ने 30 साल पहले जब ये इन्फोसिस की रचना की, 30-35 साल पहले, तो बहुत कम पैसे डाले, लेकिन अपने टेक्नोलॉजी के जानकारी के हिसाब से उन्होंने वो पैसे कमाए जो आज हजारों करोड़ों के मालिक हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, और उसी की वजह से आज धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजी की रेस चल रही थी पिछले 1000 साल में, तो भारत स्टेडियम में भी नहीं था, 10 किलोमीटर दूर भी नहीं था। आज टेक्नोलॉजी की जब रेस चल रही है, चलने वाली है, उसमें भारत फ्रंट लाइन में है। और जितना भी वेल्थ बनता है, जितना भी धन बनता है, वो टेक्नोलॉजी के बदलाव से ही बनता है। और उसमें आज मेरा ऐसा मानना है कि अगले 50 साल में विश्व में जितना भी धन बनेगा वो इतना बनेगा कि जो पिछले 10,000 साल में नहीं बना था। और वो धन कौन बना सकता है? जो समाज यंग हो, युवा हो, क्योंकि युवा लोग अच्छी टेक्नोलॉजी ग्रहण कर सकते हैं। और जो समाज टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी जानता है, अब आप देखिए जापान ओल्ड हो चुका है, चाइना सडनली ओल्ड हो गया है, भारत युवा है, यूरोप ओल्ड हो चुका है, अमेरिका भी ओल्ड हो रहा है। तो एक ही युवा देश है कि जहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग हैं, टेक्नोलॉजी को ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं। तो 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया, लेकिन 20% ऑफ यंग पॉपुलेशन, एंड अगले 50 साल में हम 25% ऑफ द न्यू वेल्थ क्रिएट करते हैं वर्ल्ड का, तो वी विल बिकम, इफ नॉट रीच अ मिडिल इनकम कंट्री by just creating newer technology, and for that you will not require lot of money to create more money. कई बार हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट हमें पैसा नहीं देगा, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल देगा, बिकॉज हमें लगता है कि सभी को मिलता है पैसा, वहाँ से किसी को नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। पिछले 12 सालों में छोटे एसएमई इमर्ज करके एनएससी ने एक सेगमेंट बनाया, उसमें 572 कंपनियों ने 15,000 से अधिक करोड़ रुपया मार्केट से जमा किया, जिनको प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल ने फंडिंग नहीं दिया, लेकिन 572 कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपया दिया, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2,20,000 करोड़ रुपया है। सो छोटी छोटी कंपनियों को छोटे छोटे निवेशक पैसा दे रहे हैं। आप भी वहाँ पे शामिल हो सकते हैं, आप भी एनएससी पे आकर के
पैसे अपने लिए जमा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इसी के लिए आज 2600 कंपनियां एनएसई पे लिस्टेड है। मेन बोर्ड पे 500 कंपनियां, 572 कंपनियां, छोटी कंपनियां एनएसई इमर्ज पे लिस्ट है। अब एनएसई क्या है मैं बताऊं आपको। भारत में विश्व में चौथी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको कहते हैं, $5.4 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आज एनएसई पे लिस्टेड है। अमेरिका, चाइना और जापान के बाद 4th लार्जेस्ट। ये गरीब लोगों का देश है, फिर भी हम धीरे धीरे अमीर बन रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं। एक दिन में अच्छा ट्रेडिंग हुआ तो 2000 करोड़ ऑर्डर आते हैं 6 घंटे में। 2000 करोड़ ऑर्डर, इंडिया में सभी चीज नंबर बड़ी बड़ी दिखती है, 2000 3000 करोड़, लेकिन 2000 करोड़ नंबर ऐसा है 6 घंटे में। जो यूपीआई, हमें मालूम है यूपीआई बहुत सक्सेसफुल है, वो महीने में 1700 करोड़ ऑर्डर करते हैं। हम लोग 2000 करोड़ ऑर्डर्स एक दिन में 6 घंटे में कर लेते हैं। एक दिन में 300 करोड़, 30 करोड़ 300 मिलियन ट्रेड्स करते हैं। विश्व का जितना भी ट्रेड होता है उसमें 50% ट्रेड्स कभी कभार एक ही दिन में हम कर लेते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से 25 गुना ज्यादा है। 10.7 करोड़ डायरेक्ट इन्वेस्टर है। जितने भारत में पिन कोड है उसमें से सिर्फ 30 पिन कोड में आज एनएसई का निवेशक नहीं है। 19,000 से ज्यादा पिन कोड है, उसमें से सिर्फ 30 जगहों पे एनएसई का निवेशक नहीं है। और 30 में से ऐसा लगभग 20 से 22 तो ऐसी जगह हैं जहां पर एयरपोर्ट है, वहां कोई फुल टाइम रह नहीं सकता, इसलिए वहां पर लोग अपना केवाईसी नहीं करवाते हैं। पूरे भारत देश में आज इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। भारत अपने उद्योजक पे भरोसा कर रहा है और उसके लिए जो फ्रेमवर्क बना है एनएसई का, उसका उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है। आज जब एनएसई की स्थापना हुई थी 1994 में, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ था। आज 464 लाख करोड़ है। 113 गुना अधिक हो गया 30 साल के अंदर अंदर, क्योंकि भारत ने अपने उद्योजक पे भरोसा जताया और उद्योजक ने वो भरोसा सूद समेत लौटाया। तो आप भी भारत के ये उद्योगपति जो बैठे हुए यहाँ पर, वो स्टॉक मार्केट से जुड़िए, अपने लिए पैसे बनाइए, अपने लिए वेल्थ बनाइए, अपने निवेशकों के लिए वेल्थ बनाइए और भारत के लिए जॉब्स क्रिएट करिए। धन्यवाद।